اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ فرزانہ صفدر کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے شام اور ترکی میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کے لیے مدد و سہارا کے نام سے چلائی گئی مہم میں 50 ملین ریال دیے ہیں۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے سانحے کے متاثرین کے لیے کل رات کی مہم میں 168 ملین ریال جمع کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ القدس میں گاڑی کی ٹکر سے 2 اسرائیلی آبادکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ کارروائی کرنے والا شہید ہو گیا ہے اور نتنیاہو نے اس کے گھر کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے شام اور ترکی میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کے لیے چلائی جانے والی مہم مدد و سہارا میں قطر ٹیلی ویژن کے مطابق 50 ملین ریال کی رقم جمع کرائی ہے۔ ملک میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کوسکو نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی جانب سے مدد و سہارا مہم میں 50 ملین ریال عطیہ دینے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر میڈیا کارپوریشن نے شام اور ترکی میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے مدد و سہارا کے نام سے کل رات قطر ٹیلی ویژن پر عطیہ جمع کرانے کی مہم چلائی۔ یہ امدادی مہم کل جمعے کی شام 5:30 بجے سے شروع ہوئی اور رات گئے تک جاری رہی، جس کے لیے قطر میڈیا کارپوریشن کو چیریٹی ریگولیٹری اتھارٹی، قطری ہلال احمر اور قطر چیریٹی کا تعاون حاصل تھا، اور کل رات کی اس مہم میں 168 ملین ریال کی رقم جمع ہوئی ہے۔ انٹرنل فورس لخویا کے تحت کام کرنے والے تلاش اور بچاؤ کا قطر انٹرنیشنل گروپ ترکی کے جنوبی متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کا کام کر رہا ہے۔ یہ قطری امدادی گروپ تلاش اور بچاؤ کے کام میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینری اپنے ساتھ لے کر ترکی گیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کی جانب سے فیلڈ ہسپتال، بچاؤ کی امداد، خیمے اور سردی سے بچاؤ کی مختلف اشیاء وہاں بھیجی گئی ہیں۔ قطر انٹرنیشنل گروپ شہر غازی انتاب کے محلے سلان میں ایک مکان کے ملبے تلے سے ایک بچے کو زندہ حالت میں نکال لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے متاثرہ علاقوں کے اپنے دورے میں اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت زلزلہ متاثرین کو دوبارہ آباد کرنے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو متاثرین خیموں میں نہیں رہنا چاہتے انہیں حکومت گھروں میں رہنے کی اجازت دے گی اور 1 سال تک ان گھروں کے کرائے ادا کرے گی۔ ترک صدر نے بتایا ہے کہ انہوں نے ترک ایئر لائن کو حکم دیا ہے کہ وہ زلزلہ متاثرین کو زلزلے کے علاقے سے لانے اور لے جانے کا کرایہ نہیں لے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کو اس تباہ کن زلزلے کے اثرات اور خراب موسم کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور امدادی ٹیمیں ابھی تک ترکی پہنچ رہی ہیں اور دنیا کے 94 ملکوں نے امداد بھیجنے کی پیشکش کی تھی۔ ترکی اور شام میں اس زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 25,000 کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر کی ترک مینجمنٹ آفات نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ پیر کے روز ملک کے جنوبی علاقے میں آنے والے اس تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 20,318 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد اب بڑھ کر 80,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پڑوسی ملک شام میں اس زلزلے سے موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد 3,507 بتائی گئی ہے، اور وہاں 7,115 اشخاص اس زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کی نائب ایلچی نجات رشدی نے کہا ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقوں کی مزید فوری امداد کی سخت ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعوں نے بتایا ہے کہ شامی گزرگاہوں کے راستے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے میں بہت سی رکاوٹیں آڑے آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیل بیڈرنسون نے شامی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے کنٹرول سے باہر شامی علاقوں میں متاثرین کی مدد کے لیے بھیجے جانے والے کو وہاں جانے دے اور رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔
कल जुमे के रोज मकबूजा अल-कुद्स के शुमाल मगरिब में शफात के करीब बसों के अड्डे पर इंतजार करने वाले यहूदी आबादकारों को गाड़ी से टक्कर मारी गई, जिसके नतीजे में 2 इस्राएली आबादकार हलाक और 4 दूसरे जख्मी हो गए। इस्राएली दरियों ने कहा है कि काबिज फौज ने टक्कर मारने वाले ड्राइवर को गोली मार दी है। कार्रवाई करने वाले का नाम हुसैन कराकी है और उसकी उम्र 31 साल बताई गई है और उसे शहीद कर दिया गया है। इस्राएली वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू ने इस इलाके में मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचाने का हुक्म देते हुए कहा है कि ये कार्रवाई करने वाले से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसने शहीद हुसैन कराकी के घर का मुहाजरा करने का भी हुक्म दे दिया है। मस्जिद अक्सा की नुसरत के लिए फजर अजीम नामी अपील पर लब्बैक कहते हुए कल हजारों फलस्तीनी मुसलमानों ने फजर की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा की। काबिज फोर्सेस की जानिब से खड़ी की जाने वाली बहुत सी रुकावटों के बावजूद हजारों मुसलमान वक्त से पहले मस्जिद के अहातों में जमा होना शुरू हो गए थे। कई नमाजियों को हिरासत में ले लिया गया था और बहुतों को जाहिरियत का भी निशाना बनना पड़ा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनके मुल्क ने एक मुनसिफाना समझौते तक पहुंचने के लिए होने वाले एटमी मुज़ाकरात में अपनी नेक नियति साबित कर दिखाई है। ईरान के सदर ने मजीद कहा है कि वाशिंगटन और यूरोपीय ममालिक ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते अपने अंदाजों और हिसाब किताब में गलती कर बैठे हैं। यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि उसने मिसाइल हमला करके रोमानिया की फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी की है, जबकि रोमानिया नेटो यानी मुआहदा शुमाली ओकियानूस का एक मेंबर मुल्क है और इस अमल से नेटो और रूस के दरमियान शिद्दत में इजाफे के अंदेशे पैदा हो गए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी फौजों ने कल यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से हमला करके इन इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने जोर देकर कहा है कि किसी किस्म के हालात भी अगले चंद हफ्तों के दौरान लड़ाका हवाई जहाज यूक्रेन के हवाले नहीं किए जा सकते। यूरोपीय यूनियन की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की भी शरीक थे। सदर मैक्रोन ने अपने बयान में कहा है कि इत्तेहादी के लिए जरूरी है कि वो ज्यादा फायदेमंद आलात को अव्वलियत दें जिन्हें तेज रफ्तारी से वहां पहुंचाया जाए। यूक्रेन के सदर इन दिनों यूरोपीय मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें उनकी कोशिश है कि इत्तेहादी ममालिक उनके मुल्क को तैयारे और दूर तक मार करने वाले हथियार फराहम करें ताकि रूसी फौजों के मुकाबले में कीव का दिफा मुस्तहकम हो सके। जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि उसने गैर कानूनी साइबर सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से अपने पड़ोसी मुल्क शुमाली कोरिया के खिलाफ पहली पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। जनूबी कोरिया की वजारत खारजा ने कहा है कि सियोल ने शुमाली कोरिया के 4 तकनीकी माहिरीन और वहां की सुराग रसानी के जनरल ऑफिस के ताबे काम करने वाली 7 तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसकी वजह क्रिप्टो करेंसी की चोरी और साइबर हमले हैं। बड़े पैमाने पर यह ख्याल पाया जाता है कि शुमाली कोरिया क्रिप्टो करेंसी की चोरी में मुलविस है और इस तरह उसने अपने एटमी प्रोग्रामों और जदीद तरीन मिसाइलों की तैयारी के लिए सरमाया जमा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता साल जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया था कि शुमाली कोरिया पर इल्जाम है कि उसने क्रिप्टो करेंसी के $400 मिलियन चोरी किए हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी तैयारों ने गुज़िश्ता हफ्ते के रोज निगरानी के जिस चीनी बैलून को मार गिराया था वो निगरानी के जदीद तरीन आलात के जरिए काम करता था और वो अमरीकी कम्युनिकेशन की निगरानी की सलाहियत रखता था।
इस अमरीकी एहलकार ने कहा है कि ये बैलून इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की कार्रवाइयों की सलाहियत रखता है और ये चीनी गुब्बारों के एक बेड़े का हिस्सा है जिसे चीनी फौज ने मुंसलिक एक फैक्ट्री के साथ निगरानी की कार्रवाइयों के लिए तैयार किया गया है। इस एहलकार ने कहा है कि अमेरिका इस बैलून के अमेरिकी फजाई हुदूद में आ जाने की वजह से पाबंदियां आयद करना चाहता है। इस एहलकार ने बार बार ये जुमला दोहराया कि ये अमेरिकी बालादस्ती और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पेरू के जनूबी शहर खोलियाका में निकाले जाने वाले एक जुलूस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें 50 के करीब मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। ये जुलूस एक माह पहले वहां की सदर दीना बुलवार्टी के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले के मुजाहरे में सेहत के हलकों की तरफ से बताई गई तादाद के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले 18 मुजाहिरीन की याद में निकाला गया है। इन मुजाहिरीन ने जब खोलियाका शहर के इनका माको का पाक नामी हवाई अड्डे की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया और वहां झड़पें शुरू हो गईं। वाज़ेह रहे कि पेरू को गुज़िश्ता 2 माह से भी ज्यादा मुद्दत से सियासी और समाजी बहरान का सामना है। वहां रोजाना मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि सदर दीना बुलवार्टी मुस्तफी हो जाएं। हुकूमत अभी तक इज्तिमाई अमन सलामती बहाल कराने में कामयाब नहीं हो सकी। अमेरिका के साबिक नायब सदर माइक पेंस को, जो सदर ट्रंप के दौर में इस ओहदे पर फाइज थे, तलब किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो 2021 में ट्रंप के हामियों की जानिब से अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर की जाने वाली चढ़ाई के बारे में अपनी गवाही पेश करें। एबीसी टेलीविजन ने कहा है कि माइक पेंस को बुलाने का फैसला फेडरल प्रोसिक्यूटर्स और पेंस की कानूनी टीम के दरमियान कई माह के मुज़ाकरात के बाद किया गया है। हो सकता है कि माइक पेंस की ये गवाही ट्रंप की उन कोशिशों के हुजूम का इंकशाफ कर दे जो उन्होंने 2020 के सदारती इंतखाबात में अपने मुखालिफ जो बाइडेन की कामयाबी की तस्दीक को रुकवाने के लिए की थी। आज का नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समूह अमीर ने शाम और तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के मुतासिरीन की मदद के लिए मदद और सहारा के नाम से चलाई गई मुहिम में 50 मिलियन रियाल दिए हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के सानहे के मुतासिरीन के लिए कल रात की मुहिम में 168 मिलियन रियाल जमा किए गए हैं। मकबूजा अल-कुद्स में गाड़ी की टक्कर से 2 इस्राएली आबादकार हलाक और 4 दूसरे जख्मी हो गए हैं। कार्रवाई करने वाला शहीद हो गया है और नेतन्याहू ने उसके घर का मुहासरा कर लेने का हुक्म दिया है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर सैफ रहमान, ऑपरेटर मोहम्मद हसन सूडानी और फरजाना सफ्तर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।